Hello student, our today topic is double column cash book. So before preparing double column cash book, we should try to know some important aspects. These are as under. First is contra transactions. Sometime a single entry may be put into the double side. One time debit side, one time credit side. When single entry recorded both sides in the same book, this is called contra entry. So normally this events has happened in the case of when cash is deposited into bank or when cash is withdrawn from the bank. Both of these situations present double entry. So case first, when cash is deposited into bank, what will be the entry? The entry is bank account debit to cash account. Cash is gone from the bank, so it should be credit, and we receive a receipt from the bank. We receive a bill from the bank. That's why bank is debited. Here we should note what we receive and what we left. We receive a receipt from the bank. This is a bank voucher. That's why bank is debit. And we left the cash from the business. That's why cash is credited. And on the second hand, if the cash is deposited into bank, this is our property. When we demand cash from the bank, it is a liability of the bank. The cash will return to us. So here, bank is an assets and increases when we deposited the cash into the bank. When asset increase, it should be debited. When cash gone from us, it should be credited. But in a simple way, just you understand what we receive and what we left. We receive a bank voucher, that's why bank is debited. We left the cash from our business, that's why cash is credited. Second, when cash is withdrawn from the bank, what we receive and what we left. To take the cash, we must fill the voucher which is available in the bank, and after depositing the voucher, we are able to receive the cash. So cash is debited when we receive the cash, and bank is credited because the voucher of the bank which is filled by us, we handed over to the bank. We left the voucher, that's why bank is credited, and we receive the cash, that's why cash is debited. In these two entries, there is a contra transactions. See the format of double column cash book. First column is date, second is particular, LF, debit cash, debit bank, then date, particular, LF, credit cash and credit bank. Suppose we did the entry bank on debit to cash. So bank is debited, that's why debit side of the bank column amount will enter, and in a particular side we will write the cash because opposite side always we note down. So one time entry is recorded in the debit side of the cash book, and secondly same entry again recorded on the credit side of the cash book, because cash is credit and cash column also available in the credit side. So amount will enter in the credit cash column, and in particular we will write the opposite side, this is bank. The reason behind it, cash left, where it goes, bank. So that's why this is the contra entry. When one entry we will pass on the both side of the same cash book, it is called contra entry. And see under the circle we always write down, it represents the contra entry, right? Same when we withdraw the amount from the bank, the entry will be cash account debit to bank. So cash is debited
and we have the debit column of the cash book. That's why amount will enter in the debit column of the cash book, and opposite side, that means bank, is write down in the cash book. Same credit side, bank is credit, then amount will enter in the credit side of the bank column of the cash book, and in a particular opposite side of the journal entry, I mean to say cash, is written down in the particular. So point is clear कि जब हमने एक एंट्री पास की है, चाहे वो बैंक में कैश जमा कराने की है, जब बैंक से कैश निकालने की है, तो दोनों केसेस में ये एंट्री कंप्लीट हमारी कैश बुक में डबल टाइम नोट होएगी। अगर आप पैसा बैंक में जमा करा रहे हो तो आपने बैंक डेबिट कर रखा है, तो कैश बुक की आपको पहले डेबिट साइड चेक करनी है। बैंक अगर डेबिट है तो बैंक का जो अमाउंट वाला कॉलम है उसमें आप अमाउंट फिल करोगे, और पर्टिकुलर में क्या लिखना है इसके लिए आपको एंट्री की अपोजिट साइड फाइंड करनी होगी। तो अगर आप डेबिट साइड नोट कर रहे हो तो आपकी एंट्री की अपोजिट साइड कैश है, तो आपको यहाँ पे कैश लिखना होगा। इस तरह जब आप डेबिट साइड नोट कर लोगे एंट्री की, तब आप एंट्री की क्रेडिट साइड नोट करोगे। क्रेडिट साइड में कैश क्रेडिट है, तो आप कैश बुक की क्रेडिट साइड में जाओगे और कैश वाला कॉलम देखोगे। कैश में आप अमाउंट एंटर करोगे और पर्टिकुलर में जनरल एंट्री की अपोजिट साइड। अगर आप क्रेडिट साइड नोट कर रहे हो तो पर्टिकुलर में डेबिट साइड लिखनी है, अगर डेबिट साइड नोट कर रहे हो तो एंट्री में क्रेडिट साइड लिखनी है आपने। चलिए अब आप बात करेंगे ट्रीटमेंट रिगार्डिंग द चेक। कई बार हम चेक जिस दिन रिसीव करते हैं उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, और कई बार चेक रिसीव करने की और डिपॉजिटिंग कराने की डेट अलग अलग होती है। अगर आप चेक सेम डेट को रिसीव कर रहे हो और उसी दिन जमा करा रहे हो, इमीडिएटली डिपॉजिट करा रहे हो, तो आपको एंट्री में बैंक वर्ड यूज़ करना है। जैसे आपने चेक रिसीव किया कस्टमर से, तो एंट्री क्या होगी, बैंक ऑन डेबिट टू कस्टमर। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बैंक डेबिट क्यों है, बिकॉज हम चेक रिसीव कर रहे हैं। अब कस्टमर क्रेडिट क्यों है, क्योंकि हम कस्टमर को रिसिप्ट दे रहे हैं कि हमने आपसे चेक लिया। रिसिप्ट हमारे पास है, जारी है, कस्टमर क्रेडिट होएगा। एक्चुअली ये रिसिप्ट को शो कर रहा है। और बैंक डेबिट क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक चेक आ रहा है। अगर हमारे पास कैश आ रहा हो तो आप कैश डेबिट करेंगे। इसी तरह अगर आप चेक रिसीविंग और डिपॉजिटिंग डेट अलग अलग है तो हम चेक को कैश कंसीडर करेंगे, राइट। तो जैसे आपने चेक रिसीव किया तो एंट्री क्या होगी, कैश ऑन डेबिट टू कस्टमर। ऐसा कब होगा कि डेबिट में बैंक की बजाय कैश यूज़ हो रहा है, जब आप चेक को किसी दूसरी डेट को डिपॉजिट करवाओगे, तब आपने चेक को कैश ट्रीट करना है। तो एंट्री में कैश ऑन डेबिट टू कस्टमर लिखना आपने। और जब आप किसी और डेट को चेक जमा कराओगे, तब आप ये सोचोगे कि ये जो कैश है वो कहाँ जमा हो रहा है, बैंक में। तब आप एंट्री करोगे बैंक ऑन डेबिट टू कैश। एक्चुअल में कैश से कैश कैंसिल हो जाएगा, एंट्री वही बन जाएगी आपकी बैंक ऑन डेबिट टू कस्टमर, राइट। अगर आपका बैंक में डिपॉजिट किया हुआ चेक डिसऑनर हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है, कस्टमर अकाउंट को डेबिट करना है और बैंक को कर देना क्रेडिट। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो चेक आपने कस्टमर से लिया, आपकी मेन एंट्री बनती है बैंक ऑन डेबिट टू कस्टमर। आपने वही एंट्री रिवर्स कर दी, तो जिससे कस्टमर पहले क्रेडिट हुआ तो अब डेबिट हुआ, वो कैंसिल हो गया। बैंक पहले डेबिट हुआ, अब ये क्रेडिट हो गया, तो बैंक भी आपका कैंसिल हो गया। दैट मीन्स कोई भी चेक आपने रिसीव नहीं किया। अगर आप चेक किसी दूसरी पार्टी को एंडोर्स करोगे, दैट मीन ट्रांसफ़र करोगे, तो जिस भी पार्टी को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो एज एन रिसीवर, उसको आप डेबिट करोगे। और आपके पास से क्या जाने वाला है, चेक, तो चेक को क्या करोगे, क्रेडिट। अब इस एंट्री में आपने समझना है कि व्हाट यू रिसीव और व्हाट यू लेफ्ट। यू लेफ्ट द चेक, दैट मीन्स बैंक शुड बी क्रेडिटेड। यू रिसीव द रिसीप्ट फ्रॉम द क्रेडिटर, दैट्स वाई क्रेडिटर इज डेबिटेड इन ए सिंपल वे। और अगर एंडोर्स किया हुआ चेक डिसऑनर हो जाए, तब आपने क्या करना है, कस्टमर का नाम डेबिट करना है जिससे फर्स्ट टाइम आपने चेक रिसीव किया, और क्रेडिटर जिसको पहले आप डेबिट कर चुके हो उसको दूसरी बार आप क्या करोगे, क्रेडिट, जिससे एंट्री आपकी कैंसिल हो जानी है। तो ये है कुछ स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ चेक। चलिए अब हमारा ये जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, जिसमें ईयर 2017 में दिसंबर 1 को एक पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया, जिसने बिजनेस में 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। और आपने याद रखना है कि इस लेक्चर में आप कैश बुक सीख रहे हो और हमारे पास 2 कॉलम है अमाउंट के,
डेबिट साइड में एक डेबिट कैश, एक डेबिट बैंक। डेबिट कैश में हम कैश का ट्रीटमेंट करेंगे और बैंक वाले कॉलम में हम बैंक चेक मिलेगा तो वो चेक का ट्रीटमेंट हम डेबिट साइड में करेंगे। दोनों ही कॉलम में पैसा आएगा कैश तो डेबिट कैश में लिखा जाएगा, अगर चेक आएगा तो वो डेबिट बैंक में लिखा जाएगा। और अगर आप किसी को कैश पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिट कैश में जाएगा, अगर आप किसी को चेक से पेमेंट कर रहे हो तो वो क्रेडिट बैंक में जाएगा। तो दिसंबर 1 को किसी पर्सन ने कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस में 50,000 से, तो एज ए बिजनेस वी रिसीव द कैश, तो आप कैश में 50,000 डालोगे। अब यहाँ पे टू कैपिटल क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आपको उस पर्सन को एक वॉचर लिख के देना होएगा, एक रिसिप्ट देनी होगी जिसका नाम कैपिटल होएगा, तो इसलिए उस बिल का नाम यहाँ लिखोगे कैपिटल और कैश में डालोगे 50,000। अब दिसंबर 1 के बाद क्या हुआ, दिसंबर 2 को आपने बैंक में 29,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए, तो हमारी एंट्री क्या बनती है, बैंक ऑन डेबिट टू कैश। अब बैंक डेबिट है तो सबसे पहले आप डेबिट बैंक में जाओगे, 29,000 लिखोगे और पर्टिकुलर में जनरल एंट्री की अपोजिट साइड जो कि कैश है वो लिखोगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि बैंक में 29,000 का कैश आ गया। उसी तरह इस एंट्री की जब आप क्रेडिट साइड नोट करोगे तो कैश क्रेडिट है, तो आप कैश की क्रेडिट साइड में 29,000 लिखोगे और पर्टिकुलर में इसी एंट्री की अपोजिट साइड लिखोगे बैंक। इसका मीनिंग है कि कैश चला गया और कहाँ पे चला गया, बैंक में। तो इस तरीके से एक एंट्री को आपने दोनों साइडों में नोट किया, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड काउंटर एंट्री। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप सी को अंडर सर्कल लोगे दोनों तरफ, तो ये है आपका, जब आप कैश डिपॉजिट कराओगे तो आपको काउंटर एंट्री का ट्रीटमेंट इस तरीके से करना है, राइट। अब इसके बाद क्या है कि दिसंबर 3 को राजा एंड कंपनी से आपको चेक मिला। क्वेश्चन में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखेगी कि चेक किसी और डेट को डिपॉजिट करवाया गया, तो इस केस में आपने मानना है कि चेक सेम डेट को और इमीडिएटली डिपॉजिट करवाया गया। तो आपने एंट्री क्या करनी है, बैंक ऑन डेबिट टू जो भी आपका कस्टमर है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बनती है, बैंक ऑन डेबिट टू राजा एंड कंपनी। अगर बैंक डेबिट है तो आपने सीधा बैंक में डालना 800 रुपया और यहाँ पे पार्टी का नाम लिखना है राजा एंड कंपनी, राइट। अब दिसंबर 3 के बाद दिसंबर 5 को क्या हुआ कि आपके बिजनेसमैन ने बिजनेस से 240 रुपीज़ बैंक से निकाला और अपना प्राइवेट यूज़ किया। तो इस केस में काउंटर एंट्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैंक से पैसा बिजनेस में नहीं आया, बल्कि बैंक से पैसा निकला और सीधा आपके घर पे चला गया। दैट मीन्स बैंक से तो पैसा चला ही गया। इस केस में आप एंट्री क्या करोगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बिजनेस में बिल बनेगा ड्राइंग का, तो आपके पास बिल आया है तो ड्राइंग डेबिट करोगे और पैसा बैंक से चला गया तो बैंक क्रेडिट। अगर बैंक क्रेडिट है तो आप बैंक की क्रेडिट साइड में 240 रुपीज़ डालोगे और पर्टिकुलर में लिखोगे बिल का नाम बाय ड्राइंग, राइट। उसके बाद दिसंबर 14 की एंट्री है कि कमला से आपको 395 रुपीज़ कैश रिसीव हुआ। तो अगर आपको कैश रिसीव हुआ तो आप कैश में डालोगे 295 रुपीज़। अब ये चेक करना है कि वाकई ये कैश है कि चेक है, राइट। अब क्वेश्चन में ये चीज़ है कि ये चेक रिसीव हुआ है, बट इसको ट्रीट कैसे किया गया है, कैश से। क्यों? क्योंकि ये जो चेक आपने रिसीव किया कमला से, इसको आगे आपने बाला को एंडोर्स कर दिया है। इसका मतलब चेक रिसीविंग और डिपॉजिटिंग डेट अलग अलग है। तो अगर आप चेक रिसीव कर रहे हो, सेम डेट को डिपॉजिट नहीं करा रहे, तो हमें इसे कैश ट्रीट करना है। तो कमला से चेक मिला है, लेकिन फिर भी हम अमाउंट किस में लिखेंगे, कैश को, क्योंकि ये चेक उस दिन डिपॉजिट नहीं कराया गया। तो कैश वाले कॉलम में पैसे लिखने हैं और अपोजिट साइड में पार्टी का नाम लिखना है टू कमला, और हमारी एंट्री क्या बनती है, कैश ऑन डेबिट टू कमला। अब आगे देखें, दिसंबर 16 को ये चेक आपने बाला को ट्रांसफ़र कर दिया। अगर ये चेक बाला को ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हमारी एंट्री क्या होएगी, चेक हमारे पास से चला जाएगा, चेक क्रेडिट हो जाएगा, और चेक जिस पर्सन ने रिसीव किया वो बाला है, उसका नाम डेबिट होएगा, क्योंकि बाला से हम रिसिप्ट रिसीव करेंगे बाला के नाम की। तो एंट्री बनती है बाला ऑन डेबिट टू बैंक। तो बैंक अगर क्रेडिट है तो आप बैंक की क्रेडिट साइड में इसकी अमाउंट डालोगे और फिर दोबारा से एंट्री में क्या लिखोगे, पर्टिकुलर में बाला। पर क्योंकि आप इसको पहले कैश मान चुके हो, इसलिए दूसरी बार आप कैश वाले कॉलम में ही लिखोगे, 395 बैंक में नहीं लिखोगे। तो हमारी एंट्री क्या बनी ट्रांसफ़र करने की, बाला ऑन डेबिट टू कैश, ना कि बाला ऑन डेबिट टू बैंक, राइट। अब ये जो चेक है बाला के नाम ट्रांसफ़र हो गया है,
अब इसके बाद 29 की एंट्री है कि आपने बिल्स पेबल, यानी कि आपने कुछ लोगों को बिल लिख के दिए हुए हैं जिनकी पेमेंट अभी पेंडिंग है, तो अभी आपने उनकी पेंडिंग पेमेंट चेक से कर दी है। तो एंट्री हमारी क्या बनती है, हमारे पास से चेक गया तो बैंक क्रेडिट, डेबिट क्या करोगे, बिल्स पेबल को। बिल्स पेबल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट की एंट्री से, क्रेडिट के रास्ते से आती है, जब इसको कैंसिल करना हो तो इट शुड बी डेबिट। तो हमारी एंट्री में बिल्स पेबल डेबिट होएगा और बैंक क्रेडिट होएगा। तो एंट्री में आपको बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि पैसे बैंक से गए हैं, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिल्स पेबल क्योंकि आपने पैसे बिल्स पेबल की पेमेंट के लिए दिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि आपने अपने पास बिजनेस में 450 रुपये रखने हैं और बाकी के सारे पैसे आपने बैंक में क्या करवा देने हैं, डिपॉजिट्स। तो आपको ये कैसे करना है, सबसे पहले इस कैश वाले डेबिट साइड का आपने टोटल लगाना है जो 50,395 का है। उसके बाद जो कैरिड कैश है इसका टोटल लगाना है जो कि 29,395 बनेगा। इसमें से 450 रुपये आपने रखने हैं, तो 29,000 प्लस 395 और प्लस 450, इन तीनों को ऐड करके 50,395 में से आप माइनस करोगे तब आपके पास अमाउंट निकलेगा 20,550। एक बार फिर आपके पास टोटल पैसा है 50,395, जिसमें से 29,000 आपने खर्च कर दिया, 395 आपने खर्च कर दिया और 450 आपने अभी बचा के रखना है, इसको भी माइनस करना है। इसके बाद जो पैसा बचा 20,550 का, वो आप बैंक में डिपॉजिट करवाओगे और इसकी एंट्री क्या होएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब एंट्री में बैंक डेबिट है तो आप डेबिट साइड में आओगे, बैंक वाले कॉलम में अमाउंट लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, अपनी जनरल एंट्री की अपोजिट साइड कैश। इसका मीनिंग है कि पैसे बैंक में आ गए और कैश आ गई। अब इसी साइड की, इसी एंट्री की आप क्रेडिट साइड नोट करोगे जिसमें कैश क्रेडिट है, तो आप कैश की क्रेडिट साइड में जाओगे, 20,550 अमाउंट लिखोगे और पर्टिकुलर में इसकी एंट्री की अपोजिट साइड लिखोगे बैंक। तो इसका मीनिंग है कि कैश बिजनेस से चला गया और कहाँ चला गया, बैंक में चला गया। तो इस क्वेश्चन में अल्टीमेट आपके पास कैश में कितना बचा हुआ है, बिजनेस में 450 और बैंक में कितने पैसे हैं, ये जानने के लिए आप डेबिट साइड का टोटल लगाओ पहले, जो बनता है 50,350। हमेशा डेबिट साइड इसकी बड़ी रहती है और यही अमाउंट आपने इधर लिखना है 50,350। इतना पैसा बैंक में आपके पास आया है और खर्च कितना हुआ, जो आपकी क्रेडिट साइड में शो हो रहा है 240 और 1,000, यानी कि 1,240 रुपीज़ खर्च हो चुके हैं। वो आप टोटल में से माइनस करोगे जितने आपने रिसीव किए जब बैंक में डाले, तो बाकी जो पैसे बैंक में बचे वो है 49,110, यानी कि बैंक में टोटल रुपया आपने डिपॉजिट करवाया 50,350, जिसमें से खर्च कितना किया 1,240। तो 1,240 जब आप टोटल अमाउंट में से माइनस करते हो तो आपके पास बैलेंस बचेगा 49,110। तो स्टूडेंट, इस डबल कॉलम कैश बुक में आपने चेक का ट्रीटमेंट देखा कि अगर चेक सेम डेट को रिसीव होता है और उसी दिन डिपॉजिट करवा दिया जाए तो हम बैंक वाला वर्ड यूज़ करते हैं और बैंक वाला कॉलम यूज़ करते हैं, लेकिन चेक का रिसीविंग और डिपॉजिटिंग डेट अलग अलग है, तो हम चेक को कैश कंसिडर करते हैं। जब रिसीव करेंगे कैश वर्ड होगा, जब हम इसको आगे किसी को ट्रांसफ़र करेंगे, जब बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे तब भी इसमें कैश वर्ड यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको डबल कॉलम कैश बुक समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और ज़्यादा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। थैंक यू।